Hello students, we are here with the part 2 of functions. I hope you all have seen the part 1 of function and you will enjoy this too. I'm saying enjoy this because learning should be an enjoyment, not a burden. Okay, so we start with function part 2. First thing I want to discuss in this PPT, or you can say video, is about formal or actual parameter, because somebody asked me about them. Formal and actual I have already told you in previous slides, but still that was not clear to you. So again we will take up this, and I am using the slides from I'm using the slides from the video of that sir. I don't know the name of sir, but I am using them. So I am already telling you that I am using them. So you know na कि intellectual property rights are there to take up you. Okay, function parameters, formal and actual parameters. Formal parameters are written in the function prototype and function header. So you already know function prototype or function definition is does mean function definition. Okay, function definition बताया था आपको. When you use def, function name and brackets and like colon, then it is called function header or function definition. So here what you write is called formal parameter, and when you call a function using the name of function, ये कुछ याद आ रहा है, like this, using function name and brackets, then it is called actual parameters. So when a function is called, the values that are passed in the call are called actual parameters. At the time of the call, each actual parameter is assigned to the corresponding formal parameter. अब ये कैसे करेंगे? देखिए, here see this. Formal parameter are said to be parameters and actual parameters are said to be arguments. See, this is here to confuse you actually. If you see only the term parameter, then it will indicate two formal parameters. And if you see the term only arguments, not formal, not actual, then it will consider actual parameters. Okay, you have to learn this. In next slide, next slide, there is an example of formal and actual parameter. So here add function is there. Add function is there, defined in a function x and y and formal. So उसमें बताया है x and y are formal, and this is the body of your function, or you can say execution of a statement. a इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पे पहला नंबर यानी कि x हो सकता है. यहाँ पे y में x y क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज वॉट एवर यू गिव हेयर इन a comma b, when you call a function using actual parameter, then it will indicate to x or y. देखो बहुत गंदा कर दिया मैंने. So I will clear this. See, where you are making a function def add, and here you are writing x comma y, and if you are calling a function add a comma b, then a will go here and b will go here. Okay, so that's why I deleted that slide to show you clearly कि ये क्या हो रहा है. इस तरह से वर्क करेगा. टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. पाइथन सपोर्ट्स 4 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप जो आर्ग्यूमेंट ब्रैकेट में लिखते हैं, दिस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: पोजिशनल, डिफॉल्ट, कीवर्ड एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स. ओके, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ये चारों आपको बाय हार्ट रिमेंबर होने चाहिए. We will start with default arguments. These are the arguments through which we can provide default values. What are default values? If the values are not given, to you in the calling of a function, or we can say if the values are not given by you in the calling of a function, then it will take up the values already given in the formal parameters. Okay, so if we don't pass any value, passing the parameters को यहाँ से जो हम देते हैं इसको पास करना बोलते हैं, passing the parameter, passing the arguments, then it will take up predefined value. ठीक है, so default argument is predefined values. See, this is a function. अब function तो आपको समझ में आ गया होगा.
ये आपकी बॉडी हो गई, सी इक्वल टू ए माइनस बी, प्रिंट रिजल्ट इक्वल टू सी। आई होप यू रिमेंबर रिटर्न स्टेटमेंट्स कहाँ होनी चाहिए, नहीं है तो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। एट 5,20, सो नाउ इट विल टेक 5 फॉर ए, अंडरस्टूड। तो ये 5 जाएगा ए में, बट अभी बी का क्या होगा, यहाँ पे 20 भी दिया है, देन इट इज बी इक्वल टू -10। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, whatever it is written b equal to -10, it is called a default argument. Okay, it is a predefined value. And print at 5,20, so b equal to -10 is already given, but we are passing 20. We are passing 20, so it will take the value of b equals to 20. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a equal to 5, b equals to 20. So when you will calculate c equal to a minus b, then result will be 5 minus 20, it means -15. But see the next thing, at 10, here we have given only one single argument, one single actual parameter, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू तो 10 ही रहने वाली है। What will happen the value of b? You cannot say this is an error because there is already a default argument given there, which is -10. So now we will take b equals to -10, and when we do c equals to a minus b, so you already know, you are a mathematical student also. 10 minus -10, it means 10 plus 20, 10 plus 10, sorry. So it will give you answer 20. I hope it is very understandable. Default arguments are very very easy. और आपने यहाँ पे एक चीज और सीखी, मैं हमेशा कहती हूँ आपको रिकैपिटुलेशन करना चाहिए, कि you have called the function add using two different type of parameters. Okay, तो यहाँ पे आप कितनी बार भी एक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, there is no limit that you can only call once, क्योंकि अब तक जब हमने एग्जाम्पल दिए थे we called only once, but you can call any time, how many times you want. Okay, so we will do keyword arguments. If a function have many arguments and we want to change the sequence of them, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. बिगेस्ट बेनिफिट वी नीड नॉट टू रिमेम्बर द पोजीशन. देखो वहां पे क्या हो रहा था, वी विल हैव टू रिमेम्बर कि फर्स्ट ये वाला जाना है, सेकंड में ये जाएगा, थर्ड में फोर्थ वैल्यू जानी है, तो ये क्या हो सकता है, वी हैव टू रिमेम्बर द पोजीशन. बट व्हेन वी आर पासिंग द वैल्यूज यूजिंग कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दैट वी नीड नॉट रिमेम्बर. कैसे, देखो एग्जांपल देखो, विश एक क्या है, एक विश जो है आपका एक फंक्शन नेम है, देन नेम एंड मैसेज, दीज आर फॉर्मल पैरामीटर्स. आपको प्रिंट कराना है हेलो के बाद में नेम, देन आपका मैसेज, देन ये. अब देखिए यहाँ पे आपने 4 टाइम्स यू हैव कॉल्ड दिस फंक्शन, 4 टाइम्स. विश नेम इक्वल टू राम, मैसेज इक्वल टू गुड इवनिंग. तो आपने नेम पहले लिखा, मैसेज पहले लिखा, और यहाँ पे आपने वैल्यूज अलग से दी है. तो यू आर यूजिंग, दिस इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, हेलो के बाद में नेम की वैल्यू क्या है, राम, देन मैसेज गुड इवनिंग. Next again, wish message equal to give good evening, name equal to Ram. See what is here, कि you have just turned the sequence. You have just turned the sequence of both the arguments. Wish name equal to Ram, comma good evening. Ram, comma good evening. तो इसमें क्या होगा, name will be Ram, but good evening. सिंटेक्स एरर, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो. इसमें क्या है, आपने एक में तो दिया है, सेकंड में नहीं दिया है. इट मीन्स इट विल नॉट टेक द पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. ओके, नेक्स्ट पे विश राम कॉमा गुड इवनिंग, हेलो राम गुड इवनिंग. अब देखिए यू हैव नॉट गिवन एनी आर्ग्यूमेंट नेम, आपने नेम भी नहीं दिया, मैसेज भी नहीं दिया, बट ऑटोमेटिकली इट इज टेकिंग. तो ये क्या कर रहा है, नेम की वैल्यू राम लेके चल रहा है, मैसेज की वैल्यू गुड इवनिंग. लेकिन यहाँ पे क्या है, या तो आप दोनों जगह क्या देंगे, या तो आपको दोनों जगह आपको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देने हैं या फिर कुछ नहीं देना है. ठीक है, तो आपका सिंटेक्स एरर इस तरह से देगा. ठीक है, आप पढ़ना इसको, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना. वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट. सी वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या होता है, वी कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अभी तो क्या था, हमें अगर 10 आर्ग्यूमेंट चाहिए, देन वी विल हैव टू गिव 10 वेरिएबल्स, A, B, C, D and till 10 variables. But such arguments are known as variable length arguments. We use asterisk to give variable length argument. अब देखिए यहाँ पे asterisk क्या होता है, ये स्टार मार्क जो टमाटर पढ़ा होगा आपने. तो इधर देखो n के साथ क्या दिया है, ये
आर्ग्यूमेंट में स्टार एन, ठीक है। अब देखिए ये पूरा फंक्शन है, इसमें सम कर रहे हैं, ऐसे इक्वल टू 0 4 आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। फॉर आई इन एन, यानी कि एन में जितनी वैल्यू है उनकी ये सबको टोटल करते हुए जाना है, देन आपको लास्ट में एक सम मिलेगा। आपने देखिए इसी फंक्शन को 4 टाइप से कॉल किया, सम और ब्रैकेट खाली छोड़ा है, मतलब कुछ नहीं दिया है आपने। तो इसमें क्या करा है, देखो यू कैन नोटिस हियर दैट एवरी टाइम द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट एंड द आंसर इज कैलकुलेटेड फॉर ईच नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब देखिए आपने नहीं दिया है तो भी आंसर आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है, और दिया है तो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। सम इक्वल टू, यहाँ पे सम इक्वल टू आपने कुछ भी नहीं दिया है तो सम इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि सम की वैल्यू यहाँ पे 0 थी, ऑलरेडी दी हुई है हमको। एंड सम की वैल्यू 10 आपने दी, तो क्या होगा, फॉर आई इन 10, अब ये इसको एडिशन करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 10, 20, ये आपका 2 वैल्यूज का एडिशन आ गया। देन 10, 20, 30, तो ये 60 आ गया, ठीक है। तो 10 दिया तो आंसर विल बी ओनली 10, आपने 2 दिए तो आंसर आपका एडिशन होके आ गया 30, आपने 3 दिए तो तीनों का एडिशन होके आ गया 60। मतलब आप जितनी बार भी दे रहे हैं, हाउ मेनी, नो मैटर हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स यू आर प्रोवाइडिंग, इट इज गिविंग यू द रिजल्ट। तो दिस इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब सबसे इजी वाला आता है, देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो आप हमेशा यूज करते आ रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल जितने ही बताए हैं। एड एक्स कॉमा वाई, देखो यहाँ पे देखते हैं आर इक्वल टू एड एक्स कॉमा वाई। अभी क्या बोल रहा है, देखिए आपने यहाँ पे x की वैल्यू 10 दी, 20 दी, आपने इनका माइनस किया, 10 आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप देन एंटर वैल्यू ऑफ x, आपने 20 दिया, 10 दिया, तो ऑब्वियस ही बात है a इक्वल्स टू 20 कैलकुलेट करेगा, b इक्वल टू 10 कैलकुलेट करेगा, देन a माइनस बी इक्वल टू 10 करेगा। आप कहेंगे इसमें क्या सोच समझने वाली बात है, बट एक्चुअली पोजिशनल आर्गुमेंट क्या कहता है, दीज आर पास्ड इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर, यानी कि इसमें करेक्ट पोजीशन के बेसिस पे वैल्यू दे रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक्स की वैल्यू तो ए ही देगा, नहीं ए ही देगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वॉट एवर पोजिशन यू आर प्रोवाइडिंग इट विल टेक अकॉर्डिंग टू दिस। Okay, so very important thing, flow of execution at the time of function call. When you are calling a function, then flow of execution समझो ना कि क्या वर्ड होता है, क्या है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स। आपने देखा होगा ना, मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि देखो मेन से शुरुआत होती है, मेन से शुरुआत होती है, ये होता है, वो होता है। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम हमारा कोई बड़ा सारा प्रोग्राम होता है तो उसका एग्जीक्यूशन वेरी फर्स्ट लाइन से शुरू हो जाता है, और एग्जीक्यूशन आपका लाइन बाय लाइन, यानी कि पहली लाइन जो भी प्रोग्राम की होगी वहां से ही शुरुआत होती है, बट ये लाइन बाय लाइन चलता रहता है। वन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, फंक्शन डजंट चेंज द फ्लो ऑफ एनी प्रोग्राम, यानी कि आप फंक्शन से ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में नहीं जाके लास्ट में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन डजंट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं होता है। When function is called, then the control is jumped into the body of function। पता ही आपको, यहाँ आपने फंक्शन कॉल किया और यहाँ से सीधे वो जहाँ फंक्शन है वहाँ चला जाता है। Then all the statements of the function gets executed from top to bottom one by one। ठीक है, होता है ऐसा, फंक्शन में सारे जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और जब वापस हो जाएंगे तो वापस जहाँ से हमने कॉल किया रिटर्न हो जाएगा। इसमें लिखा है and again the control returns to the page where it was called and this sequence the Python program get executed। मैं आपको इसको लिख के भी एक एग्जांपल बताऊंगी, बाद में भेजती हूँ आपको। भी मेरे पास एक्चुअली आई डोंट हैव बुक हियर, सो आई एम फेसिंग सम शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आपको बोर्ड की क्वेश्चंस भी मैं सेलेक्ट कर करके भेजूंगी, भी थोड़े बहुत दिनों में स्टार्ट करते हैं। पासिंग एरेज और लिस्ट टू फंक्शन, देखिए इसमें क्या किया है, इन पाइथन वी यूज लिस्ट। अब लिस्ट की यूज कर रहे हैं, देखो अभी तो हमने बेसिकली देखो क्या किया, एरे जो होता है, एरे आपने पढ़ा, एरे में, एरे और लिस्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, बट लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। सो हेयर व्हाट वी हैव डन, देखो एग्जांपल में देखते हैं, बहुत अजीब सा लग रहा है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इजी। आई इक्वल टू ये, देखो आपने पता है ना कि ब्लैंक लिस्ट बनाने की, एम्प्टी लिस्ट बनाने की क्या यूज करते हैं, आप कोई भी एक वेरिएबल देते हैं और आप लिस्ट दे देते हैं। अब टपल बनानी हो तो क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है, हाँ टी बोल सकते हैं आप। एन इक्वल टू इंट आपने दिया है, अब आपको पता लग गया होगा, इंट जो होता है लाइब्रेरी का बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। फॉर आई इन रेंज, अभी आपको अगर नहीं पता है तो रेंज वाला फंक्शन फिर से पढ़ लीजिए। रेंज क्या करता है, 0 से आपकी जो लास्ट वैल्यू होती है n n-1 तक
देन int input and element equal to int input enter element for list I dot append ele append फंक्शन आपको पता है append फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा ना, उसके बाद एक के बाद एक लास्ट में ऐड करता जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिया हुआ, मैंने क्या बताया आपको, देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन अभी यहीं पे आपको सीखना है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, इट मीन्स पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये 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 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है डायरेक्टली फंक्शन पे आ जाएंगे फिर ये होगा, लेकिन अब ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ये हमारे एग्जीक्यूशन नहीं होता है, सीधे यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेन हो गया एक तरह से, अब जब ये कॉल होगा देखो फॉर डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले कर रहा है इवन नंबर फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ लिस्ट आई कॉमा मॉड 2 इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, वैसे नहीं पता है मैं बता देती हूँ आपको। मॉड 2 क्या करता है, इट ओनली कलेक्ट्स द इवन नंबर, और अगर नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो ऑड नंबर हो जाएगा। आपको प्रोग्राम बनाना है सपोज कीजिए ऑड नंबर का, तो लिस्ट का आपको आई मतलब लिस्ट आई क्या होता है, लिस्ट मैंने देखा आई क्या तो 0 है, तो लिस्ट का 0 नंबर मतलब पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट फिर तीसरा एलिमेंट, इस तरह से प्रिंट होगा। अब देखिए मेन चीज क्या है, डिस्प्ले एल कॉमा एन, यहाँ पे आपने डिस्प्ले फंक्शन लिया है, एल मतलब लिस्ट, जो आपने ये देखो एल यहाँ पे है, और एन क्या है, एन कोई नंबर है, इसमें देखो क्या किया, अब देखो यहाँ पे एल हो गया यहाँ पे एन हो गया, ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू यहाँ से आप दोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे सर ने क्या किया देखिए यहाँ पे एंटर द लेंथ ऑफ लिस्ट आपने दी 6, यहाँ से शुरू किया एग्जीक्यूशन, एंटर एलिमेंट फॉर लिस्ट 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट चाहिए थे, तो 0 1 2 देखो 0 से लेके 5 एलिमेंट मतलब 6 एलिमेंट टोटल में आएंगे, L0 L1 L2 L3 L4, पता है ना फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं इसको। देन एंटर एलिमेंट फॉर ये 6 हो गया, नाउ व्हेन ओके प्रिंट किया है L को, जब लिस्ट प्रिंट करते हैं तो इस तरह से लिस्ट प्रिंट हो जाती है। इवन नंबर, अब देखिए यहाँ पे आएंगे इवन नंबर्स फ्रॉम द अबव लिस्ट, तो ये जो आपकी लाइन है ये आपकी पहले प्रिंट होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन शुरू होगा प्रोग्राम, मतलब जो आपका फंक्शन शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे वैल्यूज देगा 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर जो इवन नंबर है वो आपके आंसर में आ जाएंगे 2, 4, 6। समझ में आ गया। और लिस्ट क्यों देते हैं, क्या रीजन क्या है लिस्ट देने का, बिकॉज लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स बट एरे विल कलेक्ट ओनली सेम डेटा टाइप, ठीक है। ओके सो थोड़ा अच्छा सा एक टॉपिक देते हैं, स्कोप एंड राइट टाइम ऑफ वेरिएबल। आपने पहले ही पढ़ा होगा, पिछली साल मैंने बताया था, लोकल ग्लोबल हमने बहुत डिस्कस किया था ना, लोकल क्या होता है ग्लोबल क्या होता है, हमने दिमाग खा लिया था लोकल ग्लोबल का करके। लोकल क्या था, वेरिएबल यूज इनसाइड द फंक्शन, ग्लोबल एक्सिस्ट आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो केवल फंक्शन के अंदर यूज होते हैं, यानी कि जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन बनाया है ऐड, और उसके अंदर अगर मैंने कोई ए बी कोई वेरिएबल लिया है तो वो सिर्फ उसी के अंदर होगा, इससे बाहर इसकी वैल्यू नहीं आएगी। इट कैन नॉट बी एक्सिस्ट आउटसाइड। इन दिस स्कोप द लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन इज एज लॉन्ग एज द फंक्शन एग्जीक्यूट, यानी कि जितनी देर उस फंक्शन की लाइफ है, जितनी टाइम वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, देन ओनली द वेरिएबल्स विल बी एग्जीक्यूटेड और वेरिएबल्स विल हैव द लाइफ टाइम। ये कब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वंस रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, हेंस अ फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम इट्स प्रीवियस। क्या इतना सारा समझ में नहीं आ रहा ना, नेक्स्ट अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ग्लोबल स्कोप लाइफ टाइम, ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल जो हमेशा हर जगह है, तो दिस इज द इट लाइफ टाइम क्या होता है इसका, थ्रू आउट विच द वेरिएबल एग्जिस्ट इन द मेमोरी, एग्जिस्ट एक्चुअली, तो जितनी देर मेमोरी में रहेगा उतनी देर ये ग्लोबल स्कोप रहेगा। अब देखिए कैसे है, एग्जाम्पल देखो, डेफ फंक्शन दिया है x इक्वल टू 10, अब देखो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है वो होती है लोकल, प्रिंट वैल्यू इनसाइड फंक्शन x, अब ये क्या है, ये देखो मेन वाला पार्ट आ गया, x इक्वल टू 20 माय फंक्शन प्रिंट वैल्यू आउटसाइड फंक्शन। अब देखो इसका आउटपुट मत देखो, आपने देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले x की वैल्यू 20 है, वी अंडरस्टूड दिस, माय फंक्शन इट विल कॉल दिस, देखो सर ने बता के रखा है, देन x इक्वल टू 10 लोकल है, यहाँ पे प्रिंट होगा वैल्यू इनसाइड फंक्शन, देखो यहाँ पे आंसर आया वैल्यू इनसाइड फंक्शन, और x की वैल्यू क्या आई 10, समझने वाली बात ये है कि ये 10 आई। उसके बाद में ये वापस यहाँ से मैंने बताया था आपको कि ये रिटर्न हो जाता है, फिर यहाँ पे प्रिंट वैल्यू आउटसाइड फंक्शन, अब देखो यहाँ पे 20, आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो ये क्या हुआ, हमने क्या बताया अभी,
आपकी जो फंक्शन के अंदर की जो वैल्यूज होती हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिड फंक्शन डज नॉट रिमेंबर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम इट्स प्रीवियस कॉल्स, यानी कि ये जो प्रीवियस ही इसको कॉल यहाँ पे जो किया है ये बाहर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो आई फिनिश इट हियर। अभी के ये इतना ही बहुत है आपके लिए, बहुत सारे मैंने इसमें कंसेप्ट्स बताए हैं। एक बार रिकैपिचुलेट करें हम लोग, तो हमने शुरू किया फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर से। फॉर्मल पैरामीटर कौन से होते हैं, दोज आर प्रेजेंट इन द डेफिनेशन और हेडर ऑफ फंक्शन। और सेकंड चीज क्या आती है हमारी, एक्चुअल पैरामीटर जो हमारे कॉलिंग में होते हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। और उसके बाद में आपने टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पढ़े, 4 टाइप्स, पोजिशनल, कीवर्ड, वेरिएबल लेंथ एंड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये चारों आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। देन मैंने आपको स्कोप ऑफ वेरिएबल भी पढ़ाया, आपको लोकल और ग्लोबल के बारे में, ठीक है। आगे वाली चैप्टर, आगे वाली जो सीरीज होगी उसमें मैं आपको थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लोबल और लोकल के बारे में बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी आपके साथ में, ठीक है। मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बोर्ड वगैरह के जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी, ठीक है। तब तक इसको पढ़ते रहो और इसके साथ छोटे छोटे नोट्स आप इसको इनको लिख भी सकते हैं, अपने आंसर आपने जो भी अपनी नोटबुक बनाई हुई है उसके अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताना आप, और नहीं लगे तो ये बता देंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।